Very good afternoon, everyone. Where are the people? Okay, then wait for 1 or 2 minutes. Na? Okay, I think people have joined. Okay, let us start with the class. In the last session, we have discussed the strategies. There are 4 strategies we are having to handle the deadlock in the system. These 4 strategies were deadlock prevention, deadlock avoidance, deadlock reduction and recovery, and deadlock ignorance. So with today we are going to start the discussion on the deadlock prevention strategy. How you will prevent the deadlock in the system by using deadlock prevention method. So
already mentioned in the last class that we can prevent deadlock to occur in our system if I can violate any of the four necessary conditions. If I can able to violate any of the four conditions that will lead to deadlock in the system, if I will violate these four conditions, अगर मैं इनमें से कोई एक भी condition violate कर दूँ system में, I can able to assure that deadlock will not occur in the system. This is what I mentioned in earlier class as well. तो अब हम यहाँ पर क्या ट्राई करेंगे कि मैं अपने सिस्टम को डेडलॉक से प्रिवेंट कर सकूँ और वो प्रिवेंशन कैसे होगा, मैं एक एक करके चारों कंडीशंस को अटैक करूंगी और देखूंगी कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये कंडीशन नहीं हो सिस्टम में. अगर इनमें से एक भी कंडीशन सिस्टम में नहीं होती है, if I am having any of the solution so that any of the conditions will not occur, the system will be in that system deadlock will not occur. Is it fine? So firstly, let us attack the mutual exclusion condition. Firstly, what I am doing here is let us attack the mutual exclusion condition. As per the mutual exclusion term, we have discussed many times this term in our classes. Mutual exclusion means one at a time. What we say to the mutual exclusion? Mutual exclusion means one at a time. One at a time means here mutual exclusion refers to one process at a time can access a resource. हमारे पास सिस्टम में कुछ ऐसे नॉन शेयरेबल रिसोर्स होते हैं जिन्हें एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है. फॉर एग्जांपल प्रिंटर, फॉर एग्जांपल सीपीयू. These are the resources in our system which can be accessed one at a time only. We are having some non-shareable resources in our system which can be accessed only in a manner, means only in a manner of mutual exclusion fashion, right? Only one process at a time can access these resources in our system. We know that. So how we are saying that we can violate the mutual exclusion condition? अब हम यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन को वायलेट करेंगे. तो मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं एक टाइम पे एक प्रिंटर पे चार प्रोसेसेस को प्रिंटर एलोकेट कर सकती हूँ, क्या इज इट पॉसिबल? Is it possible I can allocate or I can execute four processes on one CPU? Is it possible? Is it feasible? Can I execute four processes at a time on the same time on one CPU? If you remember the concept of multi-programming and multitasking in which we are having one processor, I can execute only one process at a time, right? Do you know that? Yes or no? Right? So what I am saying here, मेरे पास सिस्टम में कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसमें मैं एक ही प्रोसेस को एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकती हूँ. जैसे कि सीपीयू है, एक टाइम पे मैं कुछ भी कर लूँ, मैं एक ही प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर सकती हूँ, चाहे मेरे पास 4 प्रोसेस है, चाहे मेरे पास 10 प्रोसेस है, चाहे मेरे पास 20 प्रोसेस है. लेकिन मेरे हार्डवेयर की प्रॉपर्टी क्या है? When I am having one CPU in the system, I can allocate only one process at a time. Others have to wait. There's another option. So basically, we cannot violate the property of the hardware resources. If we talk about the printer, only one process at a time can use the printer, right? So we cannot violate the hardware property of the processes in the system. This we know that. This statement says we cannot violate the hardware property of the system. It means we cannot violate the mutual exclusion condition in the system. It is not feasible at all. अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं एक CPU 10 प्रोसेसेस को दे पाऊँ, तो it is not possible. So
this violation is not feasible here. I cannot violate the mutual exclusive property of the resources. मीन्स अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो रिसोर्स है वो नॉन शेयरेबल रिसोर्स है, तो ये उसकी हार्डवेयर प्रॉपर्टी, जैसे कि मैं चाहकर भी चेंज नहीं कर सकती, मैं कोई भी एल्गोरिथम लिख लूँ, मैं कोई भी सोल्यूशन ले आऊँ, आई कैन नॉट चेंज द हार्डवेयर प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑफ द रिसोर्स. दिस इज फैक्ट. I cannot deny this fact and it is not feasible to violate the mutual exclusion condition of the system. So इससे हमें ये तो पता चल गया है कि जो पहली कंडीशन हम अटैक कर रहे थे वो तो पॉसिबल नहीं है. So I'm having only three options left. So now I can violate the hold and wait, no preemption and circular wait. तो पहला वायलेशन था वो फिजिबल नहीं है, तो मेरे पास तीन ही ऑप्शंस बचते हैं, राइट. सो गाइस, डू यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज नॉट फिजिबल? Okay. Moving further, we can violate. We are having the second in the deadlock prevention. We are also attacking on the second condition, that is hold and wait. Hold and wait condition क्या है मेरे पास, कि जो मेरा प्रोसेस है वो अपने पास कुछ रिसोर्सेज को होल्ड करके रखता है और नए रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए वेट करता है. दिस वाज द प्रॉब्लम. दिस कंडीशन होल्ड एंड वेट क्या बोलता है, अगर मेरे पास कोई गिवन प्रोसेस है और उसने ऑलरेडी किसी फाइल 1 को यूज कर रहा है, उसे फाइल 2 चाहिए, तो वो नई रिक्वेस्ट को नए रिसोर्स के लिए वेट तो करेगा लेकिन पुराने वाला रिसोर्स होल्ड करके रखेगा. दिस वाज होल्ड एंड वेट. So I can violate hold and wait. The first idea I came up with the hold and wait was conservative approach. Which approach I am having right now is, that is conservative approach. What the conservative approach is that आप किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने से पहले, आप किसी भी प्रोसेस को, फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ प्रोसेस P1, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन अलाउ करने से पहले इसको जितने भी, फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 रिक्वायर्स A, B और C, these three resources during the execution, तो मैं इस प्रोसेस को तभी एग्जीक्यूट करने दूंगी जब इसके पास तीनों रिसोर्सेज होंगे. और दिस कंजर्वेटिव अप्रोच सेज दैट, प्रॉब्लम क्या थी, कोई भी प्रोसेस नए रिक्वेस्ट जब अप्रोच करता है, नए रिसोर्सेज के लिए जब अप्रोच करता है, तो पुराने रिसोर्सेज को होल्ड करके रखता है, उसे रिलीज नहीं करता है. तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैं किसी भी प्रोसेस को तभी एग्जीक्यूट करूंगी जब उसके पास ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जितने भी रिसोर्स उसको चाहिए वो सभी रिसोर्सेज होंगे तब. Idea says that the conservative approach says that I will execute to the process P1 only when the resources required during the execution of this process, it will acquire all those resources initially. अगर उसके पास पहले से ये सारे रिसोर्सेज होंगे तभी मैं P1 में एग्जीक्यूट करूंगी, नहीं तो मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगी. P1 क्या करेगा, वेट करेगा इन रिसोर्सेज के लिए. अब प्रॉब्लम क्या है इस अप्रोच की? अप्रोच तो ठीक है, अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो डेडलॉक तो नहीं आएगा. अगर मैं क्या कर रही हूँ कि कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन से पहले, माय वॉइस इज क्रैकिंग. Now I'm clearly audible. Am I clearly audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So conservative approach says that whenever a process wants to execute, किसी भी प्रोसेस को अगर एग्जीक्यूट होना है तो उसको ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ प्रोसेस P1 और P1 को एग्जीक्यूशन के टाइम पर तीन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है. लेट अस assume that P1 requires three of the resources A, B and C during its execution, तो मैं उसको तभी एग्जीक्यूट करूंगी जब उसके पास तीनों रिसोर्सेज होंगे.
अगर उसके पास इसमें से एक भी रिसोर्स नहीं होगा तब तक P1 को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो बात तो सही है, इससे क्या होगा, डेडलॉक नहीं होगा सिस्टम, ठीक है। डेडलॉक क्यों हो रहा था, क्योंकि अगर इसको कोई नया रिसोर्स चाहिए था तो उसे वेट करना पड़ रहा था, तो इससे क्या हो जाता था, डेडलॉक हो रहा था सिस्टम में। तो मैंने तो प्रॉब्लम ही खत्म कर दी कि जब तक सारे रिसोर्सेज नहीं हो मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगी, तो ये सारे रिसोर्सेज को लेकर बैठेगा भी नहीं, और ऐसा भी नहीं कि ये वेट करेगा किसी एक के लिए और दो इसके पास ऑलरेडी है, तो मतलब अगर ये एक के लिए वेट कर रहा है तो ये दो को होल्ड नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम आई हैव सॉर्टेड, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस अप्रोच आई एम हैविंग। अब ये जो अप्रोच है, क्या वो अप्रोच बेटर है? अगर मैं इस अप्रोच की बात करूं, कंजर्वेटिव अप्रोच, तो इज दैट अप्रोच इज ओके अकॉर्डिंग टू यू, दिस इज ऑप्टिमल अप्रोच? Is that approach is optimal for the system? Of course not. This approach is not optimal. But I'm saying, first of all, this approach is less efficient. Why it is less efficient? अगर मान लेते हैं P1 को तीन रिसोर्सेज चाहिए, A, B और C। अब P1 को ड्यूरिंग, अब मान लेते हैं P1 को 10 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना है। लेट अस अज्यूम, आई एम जस्ट गिविंग यू वन ऑफ द एग्जांपल। पहले 4 सेकंड के लिए उसको A की रिक्वायरमेंट है, फिर 2 सेकंड के लिए उसको बी की रिक्वायरमेंट है, और फिर 4 सेकंड के लिए उसको सी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन एग्जीक्यूशन, P1 requires 3 of the resources and A requires for 4 seconds, B requires for 2 seconds and C requires for 4 seconds again। अब मान लेते हैं इनिशियली P1 के पास ए रिसोर्स है और सी रिसोर्स है, लेकिन बी रिसोर्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो पी के पास हमने स्ट्रेटेजी क्या लगाई कि P1 के पास जब तीनों रिसोर्स नहीं होंगे तब तक मैं उसे एग्जीक्यूट नहीं करूंगी, लेकिन इनिशियली P1 के पास जो रिसोर्स ए है वो उसे लेकर 4 सेकंड तक एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। लेकिन मैंने क्या बोला कि जब तक उसके पास तीनों रिसोर्सेज नहीं होंगे तब तक P1 को वेट करना पड़ेगा। मतलब अगर मेरे पास बी को अवेलेबिलिटी नहीं है और बी की अवेलेबिलिटी होने में मुझे 10 सेकंड के लिए भी वेट करना पड़ा, तो P1 उन 10 सेकंड्स के लिए काम नहीं करेगा और क्या करेगा, सिर्फ वेट करेगा। तो दिस इज द इनएफिशिएंसी ऑफ योर सिस्टम। दिस अप्रोच इज नॉट एफिशिएंट। तो मतलब वो 4 सेकंड काम कर सकता था, लेकिन 4 सेकंड का काम ना करते हुए उसने 10 सेकंड पहले वेट किया, फिर उसने काम किया, राइट। क्योंकि जो रिसोर्स उसे इनिशियली चाहिए था वो अवेलेबल था, लेकिन उसके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल ना होने की वजह से वो वेट करता रहेगा। तो दिस अप्रोच इज लेस एफिशिएंट एंड आल्सो नॉट इम्प्लीमेंटेबल एज वेल। अब देखो, पहली बात तो ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ये बोल सकूं कि P1 प्रोसेस को ये तीन रिसोर्सेज चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आई कैन नॉट से दैट। क्यों? क्योंकि बिगनिंग में कौन से प्रोसेस की रिक्वायरमेंट कौन से रिसोर्स की है ये हम नहीं बता सकते। दिस इज नॉट फिजिबल इन द सिस्टम। प्रॉबली हो सकता है कि प्रोसेस को ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन कोई फाइल की रिक्वायरमेंट हो जो उसे पहले नहीं थी, तो मुझे उसे देनी पड़े, राइट। So this approach first of all is less efficient and not implementable as well। इसे मैं implement भी नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि इसके लिए सारे प्रोसेसेस को अपनी रिक्वायरमेंट, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट इनिशियली पता होगी, तभी काम बन पाएगा ना, नहीं तो कैसे बन पाएगा। So this approach I cannot follow, I cannot implement in the system, right? Secondly, okay, this is less efficient, feasibly not practically possible। Also, the third thing in this approach we are having is the starvation problem। Means ऐसे processes जिनकी resources की need सबसे ज्यादा है, मान लेते हैं कोई process है P1, उसको A, B, C, D, E, F, मान लेते हैं 6 resources चाहिए during execution। Let us assume। तो ऐसे resources जिनको बहुत सारे, ऐसे process जिनको बहुत सारे resources execution के टाइम पे चाहिए हों, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसको एक साथ सारे कभी भी फ्री ही नहीं मिले। कभी कोई एलोकेटेड है तो कभी कोई अवेलेबल नहीं है। तो सारे रिसोर्सेज जब एक साथ फ्री नहीं होंगे तो P1 की टर्न कभी नहीं आएगी, एंड दिस प्रॉब्लम विल नॉन एज स्टारवेशन इन द सिस्टम। इफ यू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टारवेशन, so the starvation problem can occur in this approach, right? So this was the first approach, that is the violation of hold and wait, which is not implementable in the system। अब हम क्या हुआ, पहला आइडिया तो हमारा फ्लॉप हो गया, अब हम होल्ड एंड वेट नहीं अटैक कर पाए।
दूसरा आइडिया क्या आया मेरे पास, दैट इज डू नॉट होल्ड। मैं होल्ड एंड वेट का जो पहला मेरे पास अप्रोच था, आइडिया फ्लॉप नहीं कर पा रही। दूसरा आइडिया क्या है मेरे पास, दूसरा आइडिया है मेरे पास दैट इज डू नॉट होल्ड। दैट इज लुक लाइक अ वेरी गुड सोल्यूशन। डू नॉट होल्ड का क्या मतलब है कि किसी प्रोसेस को अगर कोई नई रिक्वेस्ट, मतलब कोई नया रिसोर्स चाहिए, मान लो प्रोसेस P1 के पास ए और बी दो रिसोर्सेज हैं, अब P1 को ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन डी रिसोर्स भी चाहिए, तो P1 कोई भी नई रिक्वेस्ट एलोकेट करने से, नई रिसोर्स सॉरी P1 कभी भी कोई नए रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करने से पहले अपने पुराने रिसोर्सेज को रिलीज करेगा, तभी उसको नए रिसोर्सेज मिल पाएंगे। इसको डू नॉट होल्ड मतलब अब इसमें आप होल्ड नहीं कर सकते, आप रिक्वेस्ट तो कर सकते हो जब भी चाहो, बट आई एम सेइंग हियर इज P1 के पास ऑलरेडी कौन से प्रोसेस है, ए और कौन से रिसोर्स है, ए और बी, ठीक है। P2 के पास कौन से रिसोर्स है, बी और सी फॉर एग्जाम्पल, या फिर सी और डी, ठीक है। अब जो न्यू रिसोर्सेज चाहिए, जब इनकी रिक्वायरमेंट है, इसको चाहिए सी रिसोर्स और इसको चाहिए ए रिसोर्स, ए इसके पास है और सी इसके पास है, तो दोनों वेटिंग में चले जाएंगे, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, डेडलॉक। मुझे नहीं चाहिए कि सिस्टम डेडलॉक में जाए, तो मैं क्या करूंगी, जब भी किसी प्रोसेस को, मैंने क्या स्ट्रेटेजी लगाई कि जब भी किसी प्रोसेस को कोई नए रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसे पहले अपने पुराने वाले रिसोर्सेज को रिलीज करना पड़ेगा, तभी मैं उसको नई फ्रेश रिसोर्सेज अलोकेट करूंगी, राइट। तो जब भी किसी प्रोसेस को नया रिसोर्स चाहिए, पहले मैं पुराने वाले रिसोर्सेज को उसे रिलीज करवाऊंगी, तब उसे नए रिसोर्सेज, अब मान लो जब P1 ने को सी की रिक्वेस्ट आई, तो उसने ए और बी रिलीज किया, और P2 ने जब ए की रिक्वेस्ट की, तो उसने सी और डी रिलीज किया, तो मेरे पास ये चारों के चारों रिसोर्सेज अब अवेलेबल है। तो P1 की रिक्वायरमेंट मान लेते हैं सी, ए और बी है, P1 की रिक्वायरमेंट सी, ए और बी है, ठीक है, और P2 की रिक्वायरमेंट सी, डी और ए है। इन दोनों में से सी और ए दोनों को चाहिए, तो हो सकता है ना एट इंस्टेड ऑफ टाइम किसी एक प्रोसेस को तो मिलेगा, तो सिचुएशन क्या है, एटलीस्ट डेडलॉक तो नहीं होगा सिस्टम में, राइट। तो दिस इज द मेथड विच इज एफिशिएंट ऑल्सो। ऐसा भी नहीं कि सारे प्रोसेसेस को सारी की सारी जो रिक्वेस्ट है वो इनिशियली बतानी पड़ेगी, दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी हियर। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, किसी प्रोसेस को जब नई फ्रेश रिक्वेस्ट करनी हो, तो उसे पहले वाले रिसोर्सेज को पहले रिलीज करना पड़ेगा, तभी वो नए रिसोर्सेज को एक्वायर कर सकता है। दिस इज द सेकंड आइडिया, एंड दिस आइडिया holds good. We can violate hold and wait condition by using this idea in the system, right? There any doubt in this strategy? Okay. The next idea and the third method we are having with us, that is wait timeout. What I am saying here is wait timeout. मतलब मेरे कोई प्रोसेस जिसने किसी भी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है, P1 is requesting for resource R1 and P2 is requesting for resource R2. तो बेसिकली अगर ये दोनों रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहे हैं, तो मैंने एक सर्टेन टाइम लिमिट रखी, जिसके बाद आपके जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रोसेसेस ने, मान लेते हैं कि इसने R2 को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, और इसने R1 को होल्ड किया हुआ है, तो अगर इसको नया रिक्वेस्ट चाहिए, नया रिसोर्स चाहिए, तो क्या करेगा, हमने एक टाइम लिमिट रखा, फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम दैट इज 10 सेकेंड और दैट में भी 1 मिनट। तो उसी टाइम लिमिट की जितना ही सिर्फ वो प्रोसेस वेट करेगा, जैसे ही वो टाइम आउट होता है, उसके बाद वो अपने सारे रिसोर्सेज को रिलीज करेगा जो उसने होल्ड कर रखे हैं, और फिर से एक नई फ्रेश रिक्वेस्ट करेगा, राइट। व्हाट इज टाइम आउट, मतलब जो वेटिंग टाइम है अब हमारा, जो प्रोसेस किसी भी रिसोर्स के लिए जो वेट कर रहा है वो लिमिटेड है, उस लिमिटेड टाइम के बाद जो सारे के सारे प्रोसेसेस क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेज को रिलीज करेंगे और फिर एक नई फ्रेश रिक्वेस्ट करेंगे, राइट। दिस इज व्हाट
wait timeout strategy. We place a maximum time up to which a process can wait, after which process release all the holding resources with it. Is it clear? So these are the two methods I can use to violate the hold and wait condition. इन दोनों methods का use करके मैं hold and wait condition को violate कर सकती हूँ. Okay. Going further, we are having no preemption. We are violating no preemption. What is no preemption? That was the condition in which says that preemption means we can forcefully take back the resources, but no preemption is the condition in which we cannot forcefully take back the resources from the process. हम अपने प्रोसेस से फोर्सफुली कोई भी रिसोर्सेज को नहीं ले सकते हैं. दिस वाज द कंडीशन वी वर हैविंग, राइट. तो अब इसको हम कैसे वायलेट करेंगे? अगर मैं बोल रही हूँ नो प्रीम्पशन कंडीशन, इट मींस I cannot forcefully release, I cannot forcefully take back the resources which I allocated to the process from them. So how I will violate this condition? By doing the forcefully preemption. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, आप लोग बोलोगे कि मैम कंडीशन तो यही है कि हम फोर्सफुली वापस नहीं ले सकते हैं, तो हम फोर्सफुल प्रिम्पशन करेंगे तो कंडीशन का मतलब क्या है? कंडीशन तो यही थी ना कि फोर्सफुली वापस नहीं लेना है अगर एक बार एलोकेट किया, लेकिन अगर हमने उस कंडीशन को ही तोड़ दिया, दिस इज व्हाट वी आर वायलेटिंग ना. तो बेसिकली हम वायलेशन जो कर रहे हैं यहाँ पर, इट इज फोर्सफुली प्रिम्पशन मीन्स वी आर अलाउइंग एनी प्रोसेस टू फोर्सफुली प्रिम्प्ट द रिसोर्स. तो ये जो फोर्सफुल प्रिम्पशन हम करवा रहे हैं वो कुछ ही केसेस में एप्लीकेबल होगा, कुछ ही सिचुएशंस में एप्लीकेबल होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से फोर्सफुली प्रिम्प्ट कर पाएगा प्रोसेस को. जैसे कि फॉर एग्जांपल रिकॉल करो प्रायोरिटी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग. उसमें क्या हो रहा था, आपकी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस के लिए हम लो प्रायोरिटी प्रोसेस से सीपीयू प्रिम्प्ट कर रहे थे. If you recall the concept of priority scheduling, primitive case, we are permitting the CPU from the low priority process and give it to the high priority process. कर रहे थे हम ऐसा. हाई प्रायोरिटी प्रोसेस के लिए लो प्रायोरिटी प्रोसेस से क्या कर रहे थे, हम सीपीयू प्रिम्प्ट कर रहे थे. This was what we were doing. The same case applied here. We are forcefully preempting the resources from the system, not only not in every case. हर एक केस में ऐसा नहीं होगा कि जब दिल किया कि हमने प्रोसेसेस को प्रिम्प्ट कर लिया. नो, this would be done in the special cases like in high priority processes or for system process. ये मेथड हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं? एक्चुअली डेडलॉक अवॉइड करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोसेस है आपके सिस्टम में जिनको डेडलॉक में नहीं आना होता. जैसे कि आपके सिस्टम के प्रोसेस हैं, अगर आप उनको सीपीयू की या आप उनको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल नहीं करोगे इमीडिएटली, तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? विल नॉट वर्क, राइट. So this method we will going to use for in some of the situations, like we will violate the no preemption condition by forcefully preempting the resources. Likewise in interrupts we are doing. If you remember the concept of interrupts, what is interrupt? That are the high priority process in the system. है. जैसे कि आप बोलो कि मैं मूवी देख रही हूँ, ये प्रोसेस जो मेरा है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि बैकएंड पे आपकी जो बैटरी सेविंग है या फिर बैकएंड पे जो आपका हीट रिमूवर का जो प्रोसेस है सिस्टम में, उसको अगर मैं रिसोर्स ना देते हुए आपको मूवी चलाने दूँ, तो आपका सिस्टम तो वैसे भी बंद हो जाएगा, राइट. So we are having some high priority process in the system which we need to allocate the resources on the high priority. So in that case, we will preempt the resources from the ongoing processes in the system, and in this case of high priority processes case. Also, we are also trying to do one more thing here. If I am preempting any of the resource from the process, I will try to make the victim to the process which is in the waiting state rather than in the running state. मतलब अगर मेरे पास कोई P3 प्रोसेस है जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, जिसको कोई रिसोर्स चाहिए R1, ठीक है. अब मेरा कोई
P1 प्रोसेस है जो रनिंग स्टेट में है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके पास रिसोर्स R1 है, और मेरा कोई P2 प्रोसेस है जो कि वेटिंग स्टेट में है और उसके पास भी रिसोर्स R1 है। तो मैं रेदर देन कि ये रिसोर्स P1 से लूं, मैं क्या प्रेफर करूंगी कि मैं ये रिसोर्स P2 से लूं। आई विल मेक द विक्टिम टू द प्रोसेस विच इज इनटू द वेटिंग स्टेट एज इंस्टेड ऑफ इन द रनिंग स्टेट, क्योंकि अगर मुझे ये रिसोर्स चाहिए तो मेरे पास दो प्रोबेबिलिटी चांसेस है, मैं P1 से भी ले सकती हूँ, P2 से भी ले सकती हूँ। So instead I will take the resource from P1, I will take this resource from P2 process because it is already blocked ना। तो मैं किसी और प्रोसेस को ब्लॉक करने की बजाय जो प्रोसेस ऑलरेडी ब्लॉक्ड है उससे वो रिसोर्स लेके यूटिलाइज करूँ। So this was the things we should keep in mind whenever we trim the resources from the processes. This is how I can violate the no permission condition in the system. Is it clear? Fine. The next violation I am having is violation of circular weight. Now I am attacking the condition, that is the fourth condition I am having, that is circular weight. तो circular weight की condition को violate कर रही हूँ मैं। इसमें मैं क्या करती हूँ? I am using one of the method to violate this condition, that is global numbering. I will provide a global numbering to the resources. For example, I am having n number of resources. जितने भी resources है उसको मैं एक number दे दूंगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 and so on. मैंने हर एक रिसोर्स को, मैंने सीपीयू को मान लेते हैं, मैंने यहाँ पे प्रिंटर को नंबर 1 दे दिया है, सेकंड रिसोर्स जो मेरा है वो स्कैनर है, ठीक है, पहला रिसोर्स मेरा प्रिंटर है, फिर मेरा प्लॉटर है, मेरा टैब ड्राइवर है, सीडी रोम है एंड सो ऑन। तो मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज है सिस्टम में मैंने उनको एक ग्लोबल नंबर दे दिया है। अब जिस भी प्रोसेस को, फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ प्रोसेस P1, जिस भी प्रोसेस को रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, any of the process wants to acquire any of the resource from the system, it can acquire that resource in the increasing or decreasing order, either increasing और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अभी सिर्फ मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करती हूँ तो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मतलब P1 प्रोसेस को मान लेते हैं रिसोर्सेज को एक्वायर करना है, तो वो देखो पहले R1 के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, चलेगा, R2 के लिए कर सकता है, चलेगा, R4 के लिए कर सकता है, R43 56 एंड सो ऑन, कितने भी रिसोर्सेज के लिए कर सकता है। अगर उसने एक बार R1 के लिए रिक्वेस्ट की, फिर R4 के लिए रिक्वेस्ट की, उसके बाद R2 के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज इट विल मेक द cycle into your resource graphs. They will go back and request for the resource which is available. अगर उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी प्रोसेसेस के लिए रिक्वेस्ट करे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट, द नंबर्स वी हैड गिवन। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोसेस हमेशा इनिशियली सारे रिसोर्सेज को एक्वायर कर ले, वो एक एक करके भी रिसोर्सेज एक्वायर कर सकता है। We are having no problem with that. But what we had given a number to the resource. Now this time process should acquire the resource in the increasing order only. अगर वो रिसोर्स 4 के बाद रिसोर्स सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उसे पहले थर्ड फोर्थ जो उससे पहले वाले रिसोर्सेज हमको रिलीज करना पड़ेगा, तभी मैं उसको पीछे वाला रिसोर्स दूंगी। बट आई एम डूइंग हियर, जैसे कि मान लेते हैं P1 के लिए फर्स्ट रिसोर्स एक्वायर किया, फोर्थ रिसोर्स एक्वायर किया, ठीक है, अब उसको सेकंड रिसोर्स भी चाहिए, तो पहले वो फोर्थ रिसोर्स को रिलीज करेगा तभी मैं उसको सेकंड रिसोर्स दूंगी, उसके बाद वो फोर्थ रिसोर्स फिर से ले सकता है। दिस इज हाउ आई कैन वायलेट द सर्कुलर वेट कंडीशन इन माय सिस्टम। इज इट क्लियर हाउ आई विल वायलेट द सर्कुलर वेट? क्यों पिछले रिसोर्सेज के लिए जब रिक्वेस्ट करता है तो उससे क्या होता है, आपके रिसोर्स ग्राफ में सर्कल होता है। यस राज? Anybody is having any doubt till now? So this was your this was the explanation or details for the
deadlock prevention method, how to handle the deadlock. One of the strategy was deadlock prevention. These were the things you have to write when in question paper. It will be asked to discuss the deadlock prevention technique. तो आप डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या करते हो, चार जो नेसेसरी कंडीशंस है उनको वायलेट करने की ट्राई करते हो बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, राइट। तो ये तो था आपका डेडलॉक प्रिवेंशन। द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वी आर हैविंग इज डेडलॉक अवॉइडेंस। इट इज आवर सेकंड स्ट्रेटेजी डेडलॉक को हैंडल करने की। इसमें हम क्या कर रहे थे, द आइडिया वाज टू केयरफुली एलोकेट द रिसोर्सेज। हम क्या करते हैं, डेडलॉक को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं बाय एलोकेटिंग केयरफुली द रिसोर्सेज टू द प्रोसेसेस। अब देखो, in most of the systems, resources are requested only at a time. The system must be available to decide whether granting a resource is safe or not. Only make the allocation when it is safe. डेडलॉक अवॉइडेंस में हम क्या करेंगे बेसिकली, अब इसमें हम जो एल्गोरिथम ही पढ़ेंगे कि आपका जो प्रोसेस है वो किसी भी रिसोर्सेज के लिए जो जब रिक्वेस्ट करता है, तो हम क्या करते हैं, आपका जो सिस्टम है वो चेक करता है कि क्या उसको वो रिसोर्स एलोकेट करे तो आपका जो सिस्टम है वो सेफ रहेगा। सेफ रहेगा मतलब डेडलॉक में जाएगा नहीं, और अगर वो सेफ रहेगा आपका सिस्टम तभी वो उसको वो रिसोर्सेज एलोकेट करता है। व्हाट इज द डेडलॉक अवॉइडेंस स्ट्रेटजी सेज दैट ओनली द सिस्टम विल एलोकेट द रिसोर्स, मतलब आपका सिस्टम रिसोर्सेज एलोकेट करने से पहले डिसाइड करता है, ठीक है, कि क्या अगर वो ये जो रिसोर्सेज है वो किसी प्रोसेस को ग्रांट कर दे, किसी प्रोसेस को एलोकेट करे, तो क्या वो सेफ है या नहीं है। तो तभी एलोकेट करता है जब वो सिस्टम, जब वो प्रोसेस रिसोर्सेज एलोकेशन सेफ होगा, राइट। अब सेफ है या नहीं इसका क्या मतलब है, वो कैसे पता चलेगा। पहली बात, एलोकेशन का अवॉइडेंस का क्या मतलब है, इसमें आपका सिस्टम तभी रिसोर्सेज एलोकेट करेगा किसी प्रोसेस को जब उसे रिसोर्सेज एलोकेट करना सेफ होगा। सेफ का मतलब आपका सिस्टम डेडलॉक में नहीं जाएगा, राइट। तो पता कैसे चलेगा कि आपका जो सिस्टम है वो सेफ है, आपका जो आप जो स्टेट आपकी जो एलोकेशन है वो सेफ है या नहीं, वो कैसे पता चलेगी। लेट अस डिस्कस। सबसे पहले कुछ भी डिस्कस करने से पहले अवॉइडेंस में दो चीजें आती हैं, एक होती है सेफ स्टेट और एक होती है अनसेफ स्टेट, राइट। सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट किसको बोलते हैं सिस्टम में। अ सेफ स्टेट इज सेड टू बी सेफ इफ इट इज नॉट डेडलॉक। सिस्टम की वो स्टेट जो डेडलॉक को ना लेकर जाए, सिस्टम की वो स्टेट को हम सेफ स्टेट बोलते हैं जिसमें डेडलॉक नहीं होता है, राइट। देयर इज सम, मतलब आपके प्रोसेसेस की जितनी भी रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट हो, जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, सबको मैंने एक एक करके एग्जीक्यूट कर दिया और एग्जीक्यूशन हो गया, एलोकेशन भी हो गया और आपके सिस्टम में डेडलॉक नहीं आया, दैट इज कॉल्ड सेफ स्टेट ऑफ योर सिस्टम, राइट। व्हाट इज अनसेफ स्टेट। अब डेडलॉक नहीं होगा सेफ स्टेट में ये तो श्योर है, लेकिन जब मैं ये बोलूं कि आपके सिस्टम में डेडलॉक होने की पॉसिबिलिटी है, दैट इज अनसेफ स्टेट। अनसेफ स्टेट डजंट से दैट ना कि आपका डेडलॉक होगा ही होगा। मेंशन हियर, listen carefully, unsafe state doesn't mean there would be a deadlock in the system. It only says that there is a probability of deadlock occur in the system, right। तो सेफ स्टेट में तो श्योरिटी है कि आपका सिस्टम जो है वो डेडलॉक में नहीं होगा अगर आपकी जो सिस्टम की स्टेट है वो सेफ है तो। लेकिन अगर आपके सिस्टम की स्टेट अनसेफ है तो इसका मतलब क्या है, आपके सिस्टम में डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वी आर नॉट गारंटीड दैट, वी आर नॉट ensuring anything here. Is it clear what is safe state and what is unsafe state? ताकि मैं आगे मूव करूं। Is it clear with everyone? Yes? Okay. तो अब देखो हम कैसे चेक करेंगे कि मेरा जो अब देखो ये तो सब जो चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ सिर्फ ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसी के बेसिस पर न्यूमेरिकल आपके गेट के पेपर में भी आएंगे और आपके जीटीयू के पेपर में भी आएंगे, ठीक है। तो मैं कैसे बताऊंगी कि मेरा जो
सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका सिस्टम अगर सेफ स्टेट में है तो उसका सेफ सीक्वेंस क्या है? Is your system is in safe state or not? If yes, what is the safe sequence of your system? This question would be asked in your GATE examination as well as in your university examination. So listen here carefully. देखो आपके पास टोटल 10 इंस्टेंसेस हैं किसी भी रिसोर्स के। फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ रिसोर्स आर, उसके मेरे पास कितने इंस्टेंसेस हैं? 10। मतलब मेरे पास आर के 10 इंस्टेंस हैं, तो मैं एक कितने प्रोसेसेस को एलोकेट कर सकती हूँ? 10 प्रोसेसेस को। ठीक है। ऑफ द रिसोर्स total of 10 resources exist, so which 7 resources are already allocated and 3 are still free। देखो मेरे पास क्या होते हैं यहाँ पर, देखो 3 प्रोसेसेस लिखे हैं ए बी और सी। हैज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द एलोकेशन। मेरे पास अगर मैं बोलूँ टोटल 10 रुपए हैं, ठीक है, आई विल से हियर दैट आई एम हैविंग टोटल 10 रुपीज, जिसमें से मैंने 7 रुपए स्पेंड कर दिए हैं, तो मेरे पास कितने रिमेनिंग है? If I'm having total 10 rupees and I have spent 7 in any of the item, how many remaining money I'm having right now? Yes, anybody? अगर मेरे पास 10 रुपए हैं और उसमें से मैं 7 रुपए कहीं स्पेंड कर चुकी हूँ, तो मेरे पास रिमेनिंग कितने बचे? हो रहे हो क्या सब? 3। तो रिमेनिंग कितने बचे मेरे पास? 3 रुपीज, राइट? The same thing is here. Has means allocation means which is already allocated। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 3 प्रोसेस है, ए बी और सी। टोटल रिसोर्सेज कितने हैं मेरे पास? 10। मेरे पास आर के 10 इंस्टेंसेस है, मतलब मेरे पास टोटल 10 रिसोर्सेज हैं, जिसमें से इतने मैं ऑलरेडी एलोकेट कर चुकी हूँ। मतलब ए को मैंने 3 दिए, बी को मैंने 2 दिए और सी को भी मैंने 2 दिए, तो मतलब टोटल मैंने कितने एलोकेट किए? 3 + 2 + 2 दैट इज 7, राइट? तो मेरे पास फ्री कितने बचे हैं अभी? 3। और ये यहाँ पर क्या लिखा है? दैट इज मैक्सिमम, दैट इज द नीड ऑफ दैट प्रोसेस। अब ए के पास ऑलरेडी 3 रिसोर्सेज हैं और उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 9। ए के पास कितने रिसोर्सेज हैं? 3, और उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? टोटल 9 रिसोर्सेज की। ठीक है, मेरे पास अवेलेबल कितने हैं? 3 रिसोर्सेज अवेलेबल है। चलिए, बी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 4, और उसके पास एलोकेटेड कितने? 2। तो हम यहाँ पर पहले क्या फाइंड आउट कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज उसको चाहिए, और उसकी नीड कितनी बची। मैक्सिमम उसके पास 9 है, उसको कितने एलोकेटेड है? 3, तो उसके और कितने चाहिए? 6। इसके पास कितने हैं मैक्सिमम? इसको चाहिए कितने? 4। एलोकेट कितने कर रखे हैं? 2, तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी बचेगी? 2। इसके पास ऑलरेडी कितने हैं मैक्सिमम? 7। एलोकेट कितने कर रखे हैं मैंने? 2, तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी बची? 5। So this is the need of the process. दिस इज द मैक्सिमम नीड ना, हर एक प्रोसेस की मैक्सिमम नीड असाइंड है, जो कितने एलोकेटेड है वो लिखे हुए हैं। तो एक्चुअल नीड कितनी बची है प्रोसेस की, वो मैंने फाइंड आउट कर ली। मैंने फाइंड आउट कर लिया ना उसकी एक्चुअल नीड। अब देखो इसमें से मैं कौन से, मेरे पास है कितने रिसोर्सेज अभी अवेलेबल? 3 रिसोर्सेज। तो मैं क्या किसी भी प्रोसेस को यहाँ पे रिसोर्स दे सकती हूँ? लेट अस चेक द नीड ऑफ ईच प्रोसेस। ए प्रोसेस रिक्वायर्स 6 resources, B process requires 2 resources, and C process requires 5 resources. How many I am having? 3. Can I give these 3 resources to anybody ताकि मैं किसी प्रोसेस को एलोकेट कर सकूँ और वो एग्जीक्यूट हो पाए? क्या मैं दे सकती हूँ किसी प्रोसेस को यहाँ पर? कौन से प्रोसेस को दे सकती हूँ मैं ये रिसोर्सेस, इसकी नीड कंप्लीट हो जाए? बी प्रोसेस को।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट कितनी है, 2, मेरे पास ऑलरेडी कितने हैं, 3, तो मैं दो रिसोर्सेज इसको दे दूंगी। तो मैंने इसको 2 रिसोर्सेज दिए, तो इसकी जो नीड है वो कंप्लीट हो गई, तो बी प्रोसेस जो है वो आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा कंप्लीट। तो उसके बाद मेरे पास फ्री कितने बचे, एक। आई एम ओनली हैविंग वन रिसोर्स एट दिस टाइम, राइट। तो जैसे ही आपका बी रिसोर्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो अपने सारे रिसोर्सेज क्या करके जाएगा, रिलीज। तो उसके पास टोटल कितने रिसोर्सेज थे, 4। 2 उसके पास पहले थे, 2 मैंने उसको बाद में दिए। तो उसने क्या किया, 4 रिसोर्सेज को रिलीज किया। तो मेरे पास कितने रिसोर्सेज बचे अब सिस्टम में, how many resources I'm having right now in the system? It is free. Free resources are 5 now. अब देखो मेरे पास, देखो यहाँ मेरे पास जो मैक्सिमम रिसोर्सेज है, तो मैंने यहाँ पे नीड लिखी थी 6, 2 एंड 5। फ्री कितने थे, 3। टोटल कितने मेरे पास, 10। तो फ्री मेरे पास 3 है, तो मैं इनमें से बी को दे सकती हूँ, तो मैंने बी को यहाँ दे दिए। जैसे ही बी के को मैंने रिसोर्सेज 2 और एलोकेट किए, तो उसकी जो मैक्सिमम नीड थी, जो 2 की रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी हो गई। बी अब एग्जीक्यूट हो जाएगा और सिस्टम से एग्जिट हो जाएगा। तो जैसे वो एग्जिट होगा, तो जो रिसोर्सेज उसने होल्ड किए हुए थे, वो सारे के सारे रिसोर्सेज, मतलब 2 उसके पास ऑलरेडी थे और 2 मैंने उसको एलोकेट किए, तो वो 4 रिसोर्सेज क्या करके जाएगा, रिलीज करे जाएगा। तो मेरे पास अब फ्री रिसोर्सेज कितने हैं, 5। लेकिन अब मेरे पास नीड कितनी है, ए की नीड कितनी है, 6। सी की नीड कितनी है, 5। तो सी की नीड मैं कंप्लीट कर सकती हूँ विद द रिसोर्स। आई कैन गिव दिस रिसोर्सेज टू द सी प्रोसेस। तो मैंने सी को एलोकेट किए, सी को पूरे एलोकेट किए, तो सी की रिक्वायरमेंट खत्म, सी एग्जीक्यूट करेगा। तो जब मैंने सी को ये सारे रिसोर्सेज दिए, तो मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं, 0। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 0 रिसोर्सेज है, तो सी ने पूरा अपना काम किया, तो वो कितने रिसोर्सेज रिलीज करके जाएगा, 7। उसका काम तो खत्म ना। अब मेरे पास जो ए की है, वो रिक्वायरमेंट कितनी बचेगी, 6। तो मेरे पास फ्री कितने हैं, 7। आई कैन एलोकेट दिस टू प्रोसेस ए। मैं क्या कर सकती हूँ, प्रोसेस ए को एलोकेट कर सकती हूँ। ए को मैंने जैसे एलोकेट किए, ए भी क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट। तो आपने देखा कि जितने भी प्रोसेसेस थे मेरे सिस्टम में, मैं उन सबकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाई। तो मेरा सिस्टम कौन सी स्टेट में है, सेफ स्टेटमेंट में। मेरा जो सिस्टम है वो कौन सी स्टेट में है, सेफ स्टेट में। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है ना जब मैं स्टक कर रही हूँ। तो मेरी जो सेफ सीक्वेंस है वो क्या होगी, पहले कौन सा एग्जीक्यूट किया, बी, फिर सी, फिर ए। दिस वाज द सेफ सीक्वेंस फॉर योर प्रोसेसेस। आर यू गेटिंग व्हाट आई हैव डन हियर? This is the example I had given to you for one instance और for one resource, सिर्फ सिंगल रिसोर्स के लिए मैंने आपको ये बताया। अब ये जो काम है, मतलब मेरा सिस्टम सेफ स्टेट में है, इसे कैसे मैं प्रोसेसेस एलोकेट करूंगी। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं पहले।
अनसेफ स्टेट के लिए कि कैसे पता चलेगा कि मेरा सिस्टम अनसेफ स्टेट में है। इसमें लिखा है कि सेफ स्टेट गारंटीज दैट ऑल प्रोसेसेस विल बी फिनिश एंड फ्रॉम अनसेफ स्टेट देयर इज नो सच गारंटी। ठीक है, अनसेफ स्टेट का मतलब भी क्या है कि सारे प्रोसेसेस खत्म नहीं हो पा रहे हैं, मतलब आपका सिस्टम डेडलॉक में आ भी सकता है और नहीं भी, देयर इज अ चांस। तो हमारे पास टोटल 10 इंस्टेंस थे और फ्री थे मेरे पास 3, मतलब 7 मैंने ऑलरेडी एलोकेट किए हैं। तो नीड देख लेते हैं पहले रिसोर्सेज की, सॉरी प्रोसेसेस की। 6, 2, 5, 3 है, मैंने 2 इसको एलोकेट किए। तो जब मैंने 2 इसको एलोकेट किए तो मेरे पास यहाँ पर 3 बचे 2। ओके, तो टोटल नीड एक मिनट, हाँ आई थिंक यहाँ पर एक एग्जाम्पल में एक दिक्कत है which I can identify. See, we are having now total instances with total resources with us 9. तो मेरे पास यहाँ इसको भूल जाओ अभी के लिए। मेरे पास कितने फ्री हैं? 4 + 2 + 2। मैंने अगर यहाँ पर 10 टोटल रिसोर्सेज लिए और मैंने 8 ऑलरेडी एलोकेट कर रहे हैं, तो मेरे पास फ्री कितने हुए? 2। ठीक है, इसमें मेरे पास यहाँ मैं देखती हूँ इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 9 और 5। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 2। और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 5। तो मैं जब ये 2 है तो मैं इसको 2 के 2 एलोकेट कर देती हूँ। तो मैंने एलोकेट कर दिए। ठीक है, तो जब मैंने इसको 2 रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए, तो जब 2 रिसोर्सेज मैंने इसको एलोकेट किए, तो ये आपका पूरा का पूरा इसको यूज करके, तो मेरे पास फ्री कितने? 0। तो जब ये इसको रिलीज करेगा तो 4 रिसोर्सेज को रिलीज करके जाएगा। लेकिन मेरी ए प्रोसेस की भी रिक्वायरमेंट 5 है और बी प्रोसेस की भी रिक्वायरमेंट 5 है। लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है? 4। मतलब मैं सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाई हूँ, ना तो मेरा ए प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पा रहा है और ना ही सी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पा रहा है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अनसेफ स्टेट ऑफ द system, right? So hence it is written here, safe state guarantees that all processes will finish, but unsafe state will no such guarantee that your all processes will finish its execution. You can see here, if we can execute all the processes in safe state, but we cannot execute, it is not guarantee in the unsafe state कि we can execute all the processes in the system. So this is what called unsafe state. मेरे पास 4 resources available हैं, लेकिन A और C प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो मोर देन अवेलेबल रिसोर्स है। अवेलेबिलिटी कितनी है? 4 रिसोर्सेज की। रिक्वायरमेंट कितनी है? 5 रिसोर्सेज की। सो आई कैन नॉट असाइन दीज 4। अवॉइडेंस का मतलब यही है ना कि पहले मैं चेक करती हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैं आप इसमें से ऐसा बोलो कि मैम मैं ए प्रोसेस को 4 दे देती हूँ, ठीक है, फिर मैं एक बाद में दे दूंगी, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट 5 की है, तो जब वो 4 भी ले लेगा तो ऑलरेडी मेरा सिस्टम डेडलॉक में आ जाएगा, राइट? सो वी कैन नॉट गारंटी दैट इन द अनसेफ स्टेट कि मेरा सिस्टम डेडलॉक में आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। So this is the example I had given you to check this system is in safe state or in unsafe state. We will continue with this discussion, and I will also give you some numericals. First of all, I will explain one of the numericals on Banker's algorithm कि हम इसमें कैसे allocation करते हैं resources की। हम next lecture में इसको सीखते हैं। Safe state और unsafe state कैसे check करते हैं, clear है सबको? Okay. So we will continue this discussion in next session. Today we are closing this session here with this.